کون ہے بھائی؟ ندیم حمید ولد سردار علی، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں ہوں ندیم حمید جی۔ سر آپ؟ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ تم یعنی یہاں کیسے؟ سر یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کیسے، کوئی اتنا بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا جس سے میری کایا کلپ ہو گئی ہو، کوئی اتنی خاص تبدیلی بھی اپنے اندر میں نے محسوس نہیں کی، لیکن سر۔ تو پھر تم نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ اچانک سر، بالکل اچانک۔ میں آپ کے پاسپورٹ پر بڑے آرام اور سہولت سے سفر کر رہا تھا سر۔ آپ کے چرائے ہوئے ٹریولرز چیک بھی میرے لیے کافی تھے۔ لندن میں میرے لیے پولیٹیکل اسائلم کا بندوبست بھی ہو گیا تھا سر۔ جب یہ ساری سہولتیں موجود تھی ندیم، پھر تم نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیوں کیا؟ لندن کا چانس کیوں نہیں لیا؟ سر آپ کو تو پتا ہے میں نے آپ کا پاسپورٹ بڑی دھونس سے لیا تھا، اور آپ کو تو یہ بھی معلوم تھا سر کہ آپ کے ٹریولرز چیک میرے پاس تھے، پھر آپ نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی؟ کیوں نہ پکڑوایا مجھے سر؟ اس کا کوئی معقول جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ محض میری جانب سے غفلت ہو۔ نہیں سر، غفلت نہیں، آپ نے مجھے چانس دیا تھا سر۔ میں دبئی ایئرپورٹ پر بڑے آرام اور سہولت سے پہنچ گیا تھا سر۔ وہاں مختصر سٹاپ کے دوران میں ڈیوٹی فری شاپ پر گھوم رہا تھا سر کہ اچانک ایک پرفیوم کے شو کیس کے پاس مجھے یوں لگا جیسے سر کوئی خوشبو میرے پاس سے گزر گئی ہو۔ میں سمجھا شاید کوئی پرفیوم کی شیشی کھلی رہ گئی ہے۔ میں دوسری طرف کتابوں والی سائٹ پہ چلا گیا سر، لیکن خوشبو میرے ساتھ تھی سر، جیسے تمباکو میں مٹی کا عطر ملا ہو، بارش کے پہلے قطرے میں کوئی چلتا سگریٹ پھینکے ہو سر۔ پھر مجھے پتا چلا آپ دبئی میں تھے، گفٹ شاپ پر وہیں کہیں میرے ساتھ، اور پھر سر آپ نے میرے لیے دونوں دروازے کھول دیے، زندگی کا دروازہ بھی اور عاقبت کا گیٹ بھی۔ نہیں، میں ایسی کرامات نہیں کر سکتا، اس کے لیے اور لوگ ہوتے۔ سر آپ نے اپنا پاسپورٹ بھی مجھے دے دیا، اپنے ٹریولز چیک بھی مجھے عنایت کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مردہ دل کو بھی جگا دی، اور پھر فیصلہ مجھے کرنا تھا سر۔ آپ نے تو دونوں دروازے کھول دیے تھے نا۔ پھر تم نے یہ فیصلہ کیا؟ جی سر، ایک راستے سے میں لندن جا سکتا تھا، بڑی آسانی سے پولیٹیکل اسائلم لے سکتا تھا سر، لیکن دوسری طرف سر میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر کے اپنے اندر کی سزا سے بچ سکتا تھا، اور میں نے اپنے اندر کی سزا سے بچنے کا فیصلہ کر لیا۔ سر آپ مانیں گے نہیں سر، لیکن یقین کیجئے سر، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش سر۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا سر، سب کچھ آپ کی وجہ سے۔ نہیں ندیم، یہ تو تمہاری شرافت ہے کہ تم اتنے بڑے قدم کا کریڈٹ مجھے دے رہے ہو، ورنہ یہ تمہاری اپنی چوائس تھی، اپنی قوت فیصلہ۔ سر اب وہاں گفٹ شاپ پر آئے تھے نا دبئی ایئرپورٹ پر، آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا نا سر، تھاما تھا نا آپ نے سر؟ اب مجھ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ ضرور، کیوں نہیں سر،
सर प्लीज दुआ कीजिए मैं कहीं फिर ना बदल जाऊं, मुकर ना जाऊं। सर प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं एक मुद्दत के बाद जिंदा हूं, कहीं फिर मर ना जाऊं सर। प्लीज सर प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, कहीं मेरी माँ मेरा फैसला ना बदल दे। दुआ करेंगे ना सर, दुआ करेंगे ना सर। ईमान और यकीन एक ऊंची कमंद है प्रोफेसर साहब, वो मुहावरा से पैगामात खींच सकती है, वो वहां की आगाही का घेराव कर सकती है, लेकिन दिमाग बदकिस्मती से वहां पहुंच नहीं पाता। अब इतनी आसानी से अक्ल और अक्ल की कंट्रीब्यूशन को निगेट तो ना करें इरशाद साहब। आज का अहद, इस अहद की तरक्की, इंसानी सूझबूझ, ये सब कुछ अक्ल के तोहफे ही तो हैं। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा बेगम साहब, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा था कि अब हमने फरासत, बसीरत और विजदान की नेमत से मुंह मोड़ लिया है और साइंसदानों ने इसे पकड़ लिया है। अब वो जब अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं, स्पेकुलेशन करने लगते हैं, कुछ डिस्कवर करने की तैयारी करने लगते हैं, तो उनका सारा दारो मदार एक यकीन और एक फेथ पर होता है, अपनी थ्योरी के एतकाद पर। थियरी के एतकाद पर? साइंसदान किसी एक मफरूजे पर, किसी एक हंच पर साल रिसर्च कर सकते हैं, एतमाद के साथ, यकीन के साथ, और उनका फेथ मजबूत ना हो तो डिस्कवरीज के सिलसिले बंद हो जाएं, नागहानी दरियाफ्तों के सिलसिले मुनक़ते हो जाएं। आप साइंसदानों को डिफेंड तो कर रहे हैं, मगर एक अजीब तरीके पर। आज के अहद में इंसानों के सवाल और तकाजे बदल गए हैं प्रोफेसर साहब, इसीलिए साइंसदानों के रवैये को बड़े गौर से देखना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर जॉन सॉल्ट अगर इस बात का पुख्ता यकीन ना होता कि कहीं ना कहीं किसी नामालूम में और किसी और मालूम में पोलियो का नुस्खा मौजूद है, तो वो पोलियो वैक्सीन के नुस्खे की तलाश में यूं ना निकलता। डॉक्टर साल को भी किसी पुराने बाबे के पुख्ता यकीन और कामिल एतमाद के साथ उसने अपनी रिसर्च को एतकाद के हवाले कर दिया। सवाल टेढ़ा था, लेकिन यकीन कामिल ने जवाब सही निकाल दिया। अब एक डॉक्टर साल पर ही मौकूफ क्या, साइंस की भरी भरी दुनिया में। इरशाद साहब, आज हमें जिन सवालों ने घेर रखा है उनके जवाब ये बाबे नहीं दे सकते। उनके जवाब डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, पॉलिटिशियंस, कंसल्टेंट्स या फिर इकोनॉमिस्ट दे सकते हैं, जो 2 और 2 को 4 करके बता सकें। वो हमारे साथ हमारे सारे मसाइल को डिस्कस कर सकें, अव्वल से आखिर तक। अजीब बात है कि जब मुर्शद बात मनवाता था, गुरु सर झुकवाता था, इसी तरह अब साइंसदान एक थ्योरी के आगे, एक यकीन के आगे, एक एतमाद के आगे खुद भी झुकता है और अपने चेले को भी झुकाता है। अकल से भी, बसीरत से भी, विजदान से भी। सही। फिर अहमियत किसको हुई? जिस्म को, रूह को, या फिर दिमाग को? कमाल करती है बेगम साहब, आप स्टूल की तीनों टांगों के बारे में पूछ रही हैं,
کہ اس میں سے کون سی اہم ترین ہے جو اسٹول گرنے بھی نہ پائے، اپنا توازن بھی قائم رکھے؟ تینوں ہی اہم ہیں مسز سلمان، ایک جیسی اہم ہے۔ اللہ بھئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی بالکل، میں تو قدم قدم پر غلطیاں کرتی ہوں اور قدم قدم پر گرتی ہوں۔ انسان گرتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے۔ انسان جو ہوا، اس کائنات پہ صرف ایک ذات ایسی ہے جو نہ کبھی گرتی ہے اور نہ کبھی ناکام ہوتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ جو لوگ اپنی غلطیوں پر، اپنی کمزوریوں پر کڑتے رہتے ہیں، ان میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان سے خدا بنا نہیں جاتا، کیونکہ یہ ناممکن بات ہے، تو وہ شیطان بن جاتے ہیں اور بڑا نقصان کرتے ہیں۔ سارے معاشرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سارے معاشرے کو، اپنے آپ کو، پورے ماحول کو۔ پاک پتن میں بابا صاحب کے مزار پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ ہاتھ پر روٹی رکھے کھا رہا ہے اور اس کے کچوندلے کبوتروں کو ڈال رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا تم اس درگاہ پر کیا کام کرتے ہو؟ تو بولا صاحب کہ میں گرتا ہوں اور گر کر پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر گرتا ہوں پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہمارے باباؤں نے مومن کی یہی شان بتائی ہے کہ گرے تو پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے، پھسلے تو پھر سنبھل جائے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو ٹھوکر ہی نہ کھائے، مومن وہ ہوتا ہے جو ٹھوکر کھائے ترنت اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے۔ میں اس سے کچھ مختلف سوچتی ہوں ارشاد صاحب۔ میرے خیال میں تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادھر موڑے پر بیٹھو مولوی جی، منجی پر بیٹھو۔ غلام دینا موڑا کر دے مولوی جی کو۔ نہیں بی بی، میں اس وقت نہیں بیٹھوں گا، پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تو میں باب غلام دین کو واپس کرنے آیا ہوں۔ باب غلام دین کو واپس کرنے آئے مولوی جی؟ ہاں بی بی، کچھ میرا علم چلا نہیں بابے پر۔ کیوں غلام دینا، کوئی زور نہیں چلے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، فضل کرے گا میرا مولا، سونا سائیں پالن ہار دو جہانہ کا کرم کرے گا۔ میں نے 6 مہینے تک سبق دیا اس کو، بڑی محنت کی اس پر صبح و شام، پر اس کی زبان ہی نہیں پلٹتی۔ بڑی نیک پاک روح ہے، پر مجبور ہے بیچارہ۔ اس نے پورا زور لگایا، پورا ساتھ دیا، اور اس کی زبان ہی نہیں پلٹتی۔
गुलाम तिन्ना, कुछ भी नहीं आया? मैंने बड़ी मेहनत की है इस पर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस पर जान खपाई है, लेकिन ये पूरे 6 महीने में सुभानक अल्लाह का कहना भी नहीं सीख सका। बिस्मिल्लाह शरीफ अलबत्ता सीख गया है, इसके आगे इसकी जुबान ही नहीं खुलती। गुलाम दीना, भला मुझको भी सुना बिस्मिल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तेरा तो इतना ही सीख लेना बहुत है, इसी में बख्शिश हो जानी है हम दोनों की इंशाअल्लाह। अच्छा बाबा, मुझे इजाजत है? मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको बरकत दे, रुतबे ऊंचे करे। अच्छा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह आपको खुश रखे, भाग लगाए, नबी पाक का दीदार नसीब करे अल्लाह आपको। अब मैं सारी उम्र बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता हुआ ही नमाज गुजारता रहूंगा तारे। ये भी तो अल्लाह का कलाम है गुलाम दीना, उसने कोई तेरे से पूछ करनी है, कोई सारा कलाम पाक पूछना है तुझसे। पर इस तरह से तो मेरी नमाज नहीं होती न तालिया, खाली बिस्मिल्लाह पढ़ने से। इसमें तेरा क्या कसूर है? तूने तो पूरी मेहनत करी है ना, मौलवी जी ने भी पढ़ाई कराई है पूरे 6 महीने, अब तेरी जुबान ही नहीं पलटी, तेरा तो कोई कसूर नहीं ना। अच्छा ठीक, चाय पिएगा? हाँ। मैं जमाले की बीवी के लिए तावीज करा के लाई, पर वो आप ही सोच कर जा बैठा है। ये अकल है, कोई अकल की बात? पक्के पीर से पक्का तावीज करा के लाई, पूरी तसल्ला करके, और वो खुद ही सौरे घर जा बैठा। आप बेचारा तावीज भला क्या करे। तालिया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आऊंगा तो फिर चाय पीऊंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो तेरा जी करे, जो तेरी रूह में आए, जैसा तू चाहे, जो तू करे। इरशाद में है, जब तवज्जो गैर अल्लाह से हटकर अल्लाह पर मरकूज होती है तो बहारें आ जाती हैं। फिर इंसान को मालूम हो जाता है कि उसका माल मनाल, इल्म दानिश, खेत तिजारत, सन्नत और हिरफत, उसके रंजो गम, सूदो ज़िया, जो कुछ भी है वो अल्लाह के लिए है। तो फिर वो तलब दुनिया में हर कदम पर तलब मौला को मौजूद पाता है। खाए पिए, नाचे गाए, रोए सोए, टारगेट उसका अल्लाह और अल्लाह की जात होती है। कुछ लोग जब नाज़िम जमहूर इंसानी और निगरान हुकूक इंसानी और आज़ादी इजहार लिसानी के नारे मारने लगते हैं तो मौला की रजा और मौला की खुशनूदी का मकसद हाथ से निकल जाता है। काम अच्छे हैं,
लेकिन टारगेट बदल जाता है, मंजिल दूसरी आ जाती है और फिर लट्टू उल्टा घूमने लगता है बच्चू जी। लट्टू किस तरह से बचाऊं सरकार के वो उल्टा ना घूमे? शाम को बिस्तर झाड़ने से पहले टोपी पगड़ी उतारे बगैर दीवार से लगकर पूछे, आज सब काम तेरी मर्जी के हुए मौला, तेरी खुशनुदी के। जवाब मिल जाएगा सरकार? पूछेगा तो जरूर मिलेगा, पर तूने तो कभी पूछा ही नहीं। और तेरी शहरक के पास ही तो है उसका तख्त, फौरन जवाब मिलेगा। जिस जबान में पूछेगा उसी में जवाब मिलेगा। मुझे तो कभी सुनाई नहीं दिया सरकार। ओए सुबह सुबह तू अखबार पढ़ता, फिर टेलीफोन पर दोस्तों के साथ बहस करता है, फिर महफिल में हालात हाजरा पर तबसरा करने चला जाता, फिर डिश एंटीना पर 12 मसाले देखता है, शाम को हेडफोन लगाकर BBC, रेडियो जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता है। और तुझे आवाज किधर से आ जानी है भाई? मुझे कभी भी आवाज नहीं आएगी सरकार। हमारे साईं हजरत साईं नूर वाले फरमाया करते थे, मोहम्मद हुसैन हरकारे, मैं हाथ बांध के कहते थे जी सरकारे। फरमाया करते थे कि जहां मौला नहीं वहां रौला है। जो जो लोग मौला से दूर होते चले जाएंगे रौला बढ़ता जाएगा, और एक दिन यही शोर इन लोगों को ऐसे पकड़ेगा जैसे हजरत स्वाले की कौम को चीख ने पकड़ लिया था। अब मेरे लिए क्या इरशाद है? तेरे लिए क्या इरशाद करना है भाई? मैंने अर्ज की थी, फरमाया वक्त आने पर खुद ब खुद लग जाएगी। आप खुद ही लगा दीजिए सरकार। तुझ पर बड़ी मोहर लगनी है भाई, खजाने की, लाख की, जो शाम को सरकारी खजाने पर लगती है। ये हमारी वाली मोहर नहीं, डिलीवरी वाली जो रोजाना हजारों लाखों खतों पर लगती है। तेरी मोहर बड़ी है भाई, रुतबे वाली। ये आप क्या फरमा रहे हैं सरकार? मेरा रुतबा और ऊंचा? ओए तेरे दरबार पर तो मोहम्मद हुसैन हरकारे जैसे कई कुत्ते दुम हिलाते आया करेंगे और कतार में बैठकर भंडारे का इंतजार करते रहेंगे। जा चला जा, अब ज्यादा बात करके मेरा दिल ना जला, नहीं तो मैं दुहाई देकर छाती पीट लूंगा कि मोहम्मद हुसैन डाकिया पीछे रह गया, मांदा मांदा हो गया, दरमांद हो गया और कोट पतलून वाला सब कुछ लूट कर ले गया। चला जा। एक तो मुझे तुम्हारी बातें ठीक से समझ में नहीं आती मोमिना। मैं तो बिल्कुल ठीक ठीक बयान देती हूँ। मैंने तो कोई बात छुपाई ही नहीं आपसे। इधर मेरी खाला रहती है सर, उनसे पैसे लेने आई थी। पैसे लेने आई थी? वो सर उन्होंने अम्मी से उधार लिए थे प्राइस फंड खरीदने को, आज तक वापस ही नहीं किए सर। लेकिन यूं अकेली ऐसी उजाड़ जगह में? सर मैं अकेली तो नहीं थी सर, मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर था जी। वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, फजूल फजूल बातें कर रहा था। वो जहाँ पीछे ट्रांसफार्मर है ना सर, मैंने उसे वहां छोड़ दिया। आइंदा कभी आओ तो अपनी अम्मी को साथ लाया करो। वो सर अम्मी मेरे साथ आ रही थी, लेकिन इधर आने को कोई सवारी ही नहीं मिली। और वो रिक्शा ड्राइवर जिसको तुमने
ट्रांसफार्मर के पास छोड़ा था वो फजूल फजूल बातें करने वाला? नहीं सर, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था आपका दिल रखने को। मेरा दिल रखने को? मैंने तो ऐसे ही कह दिया सर कि आप महसूस ना करें कि मोमना इतनी दूर आई पैदल चलकर, वरना मुझे तो कोई सवारी मिली ही नहीं। मुझे जब पैदल चलना पड़ता है तो आपको बुरा लगता है ना सर? नहीं, यूं है, कोई खास बुरा तो नहीं लगता। लगता है सर, लगता है। आप मेरा दिल रखने को कह रहे हैं, वरना आपको तो बहुत ही बुरा लगता है जी। क्यों? सर आप बहुत हसास हैं, आपको छोटी छोटी चीजें नजर आ जाती। सर ये कैसे पता चल जाता है? क्या पता चल जाता है? मैं तो नहीं कह रही, लोग कहते हैं सर कि सर बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए और उनके सर के पीछे एक बहुत बड़ा रोशनी का आला है जी, सफेद रंग का, बसंती रंग का, जैसे मेरा सूट है सर, ऐसा। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो, चलो। देखो, अब तुमने बस स्टॉप तक कोई बात नहीं करनी मोमिना। अच्छा जी, मैंने तो पहले भी कोई बात नहीं की सर, बल्कि आज तक आपसे कोई बात नहीं की। मैं तो बस दरवाजे से बोलकर चली जाती हूँ। असल किताब तो मैंने खोली ही नहीं सर, और खोलकर करना भी क्या है जी, वो तो अब जद्दा भी छोड़ गया है और कोपनहेगन पहुंचकर टैक्सी चलाने लगा है सर। इसमें गैरत नहीं है अदील में, गैरत होती ना तो मुझे इस तरह से छोड़कर ना जाता सर। मैं आपको कभी असल कहानी सुनाऊंगी सर अपने खानदान की और अपने अब्बा जी की। मेरे अब्बा जी बड़े गैरतमंद आदमी थे सर। यस यस, प्लीज प्लीज, प्रेस्तो प्रेस्तो। आइए 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 आइए, प्लीज प्लीज, बी सीटेड यंग मैन, लेडीज। हम लोग आपके पड़ोसी हैं सर, न्यू कैंपस से आए हैं और हम आपसे मिलने की इतने ख्वाहिशमंद थे सर कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ओह, आई एम ऑनर्ड। आपने हमारे साथियों को क्या पट्टी पढ़ा दी है, वो तो सारे के सारे बैक वक्त आपके इश्क में मुब्तला हो गए। पट्टी? कुछ स्टूडेंट आपको मिले थे सर नहर किनारे? नहर किनारे? वो जो कश्तियों में कवाली कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिले थे, जरूर मिले थे। बहुत खूबसूरत, नहायत ज़हीन और बहुत मोहब्बती नौजवान थे। वो आपके लिए गाना भर के ला रहे हैं। गाना भर के? उनका एक ऑर्केस्ट्रा है सर, कोटरी, और वो आपके लिए एक कोरस तैयार कर रहे हैं। मेरे लिए? वो क्यों? वो तो आपके फॉलोअर्स हो गए सर। क्या कहा था आपने उनसे? मैंने वो खास बात नहीं कही थी, मैं तो सैर करके लौट रहा था कि उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि जी हाँ सर, हमारे अंदर बड़ी जबरदस्त इख्तलाफ राय है, हम हर वक्त लड़ते रहते हैं और हमारी दोस्तियां दुश्मनी में बदल रही हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वो आपको जानते थे सर? नहीं, ना मैं उन्हें जानता था ना वो मुझे जानते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं ये नहीं जानता कि आप लोग कौन हैं। मेरा नाम अनुषा है सर और मैं बॉटनी के फाइनल ईयर में हूँ। मैं शाहिदा हूँ और ये जावेद है, हम दोनों जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। और मैं कलसूम हूँ, अप्लाइड साइकोलॉजी फाइनल ईयर। मेरा नाम रिजवान है सर और मैंने अक्सर आपको नहर किनारे लंबी लंबी सैरें करते देखा है और सर मैंने अपने घर वालों से भी आपका जिक्र किया है सर। बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन इस वक्त तो आपकी क्लास हो रही होगी। वो सर हम वहाँ से भुट्टा खा के आ गए हैं। भुट्टा खा कर? क्यों? आपसे जो मिलना था सर।
हम लोग बहुत ही जेलस हो रहे थे कि आप कोठरी वालों से तो इतनी लंबी बातें कर रहे थे और हम सब पीछे रह गए। नहीं नहीं नहीं, उनका एक मसला था। हमारे भी तो बेशुमार मसले हैं सर। नहीं, वो पूछ रहे थे कि हम अपनी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे से मुत्तहद हो जाए, एक दूसरे के साथी बन जाए, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई आप लोग इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद कायम नहीं कर सकते, इख्तलाफात में रहकर ही इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है। इख्तलाफात पर कायम रहकर सर? मुर्दा और बेजान चीज अपने सारे इख्तलाफात बुलाकर एक सी बेहिस व बेरूह हो सकती है, लेकिन जिंदा जी हिस चीज जीती जागती ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इख्तलाफात में रहकर ही इसे जिंदा रहना है, बल्कि इख्तलाफात और नामुआफकत में रहकर ही जिंदा रह सकती है। ये आप कह रहे हैं सर? हाँ, वो आपके साथी भी परेशान हो गए थे सुनकर, नहर किनारे वाले फिर मान गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे देखो, मैं एक वजूद, एक जिंदा वजूद, मेरे कुछ अज़ा है, कुछ अंदरूनी और कुछ बहरूनी, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ अमल करते हैं, एक दूसरे से फर्क कामों में मसरूफ रहते हैं, एक दूसरे से नामुआफकत रखते हैं। किस लिए भला? एक वजूद को जिंदा रखने के लिए। हाँ, एक सेहतमंद वजूद, तनमंद, ताकतवर, हेल्दी वजूद, क्योंकि सारे इख्तलाफात का मरकज ये वजूद है, और इस सारे इख्तलाफात का मकसद इस वजूद की आबेदारी है, निगहदारी है, पासदारी है। ये तो हुआ एक हैवानी वजूद। एक और भी जिंदगी है। हाँ, क्यों अनोशे? यस सर, प्लांट लाइफ। हाँ, क्या करता है तुम्हारा पौधा इख्तलाफ के अंदर रहकर? सर, इसकी जड़ अंदर अंधेरे में रहकर ऊपर खुराक सप्लाई करती है, और जो इसके पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी से तग़ज़िया हासिल करके सेल्स बनाते हैं। इस काम का कुछ प्यारा सा नाम भी है। यस सर, फोटोसिंथेसिस। हाँ, अब अगर आप लोग मेरे अज़ाए बदन को हुक्म दे दें कि ऐ बदन अपनी सारी इख्तलाफात भुलाकर एक जैसे ही काम शुरू कर दो, तो मैं तो शाम से पहले मर जाऊंगा। खुदा ना करे सर। और अगर अनोशे के पौधे से कहा जाए कि भाई आर्केनिया अपने जड़ें और पत्तों के इख्तलाफात छोड़कर उनसे एक ही काम लिया करो, तो दूसरे दिन माली आकर कहेगा कि पौधा तो सूख गया बीबी, इसे कहाँ फेंकूं? यही बात आपने उनसे की थी। हाँ, यही बात मैंने उनसे की थी। मगर आपने तो यह भी कहा था कि साइंस में इख्तलाफ होता है, सियासत में इख्तलाफ होता है और मजहब में भी इख्तलाफ होता है। जिस कदर ताकतवर और जानदार सेहतमंद वजूद होगा, उसी कदर इसके अंदर तनव्वु होगा, और यही तनव्वु और यही फर्क इस वजूद की जिंदगी का जामिन होगी। हमेशा यूनिटी डाइवर्सिटी में होती है, इख्तलाफात में हुआ करती है। तो फिर बनने दे फिरके दीन में। बनने क्या दे भाई, बने हुए हैं, आपको बस इसका एहतराम करना है। जिस तरह मेरे इस वजूद का बोझ उठाने वाली टांगे मेरे मैदे का, मेरा मैदा मेरे मुंह का, मेरा मुंह मेरे हाथ का, मेरे हाथ मेरे आसाब का, मेरे आसाब मेरे दिमाग का एहतराम करते हैं, इसी तरह दीन के मुख्तलिफ फिरके अपने इख्तलाफात के बावजूद एक वाहिद वजूद की नोरिशमेंट में मसरूफ रहते हैं, मजहब की नोरिशमेंट में। फिरके भले हूँ, बशर्ते कि इनमें एक दूसरे का एहतराम हो। लो भाई, हम में सबसे सियानी तो कुलसूम निकली। मैं शाहिदा हूँ सर
कुलसुम ये है। ओह, आई एम सॉरी। तो फिर हम अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते रहें? जरूर जरूर, बिल जरूर, लेकिन एक दूसरे की 1.5 ईंट की मस्जिद का भी वैसे ही एहतराम करो जिस कदर एक जिंदा वजूद के अंदर मुख्तलिफ अमल करने वाले अज़ाए बदन एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर कल को मेरी आंखें मेरे कानों से कहने लगे कि भाई तुम कमाल करते हो, तुम्हें सिवाय सुनाई के कुछ देता ही नहीं, तुम उधर 1 इंच तक तो देख नहीं सकते, तुम्हें कुछ नजर आता ही नहीं, तुम्हारा क्या फायदा, और मेरी जबान मेरी आंखों से कहने लगे कि ए बीवियों तुम्हें क्या आता है, अगर जरा सा जायका तुम्हें चखने को कह दो तो तुम बता ही नहीं सकते। अगर जरा सा एक जर्रा भी नमक का या मिर्च का हवा में उड़ के आ जाए तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते हो। दफा करो ये इख्तलाफ और मेरी जैसी हो जाओ, मैं भी जबान तुम भी जबान बन जाओ, बल्कि सारे अज़ाए बदन जबान बन जाते हैं। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन इख्तलाफ है बुरी चीज। जावेद का मतलब है सर कि इख्तलाफ होना नहीं चाहिए। जहां सोच होगी, फिक्र होगा, ततब्बुर होगा, वहां इख्तलाफ जरूर होगा, लेकिन हम इख्तलाफ के बावजूद नामुआफकत और इख्तलाफे तबाह के बवस रब्त ज़ब्त, मेल मिलाप और यकजहती की जिंदगी बसर कर सकते हैं, बल्कि कर ही इसी तरह सकते हैं। इख्तलाफ रख कर और कोई तरीक मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए कि जिससे खुदा की मोहब्बत हासिल हो, रूहानियत बढ़े। खुदा की मोहब्बत? जी। अच्छा ऐसा करो, ये अपने दोनों हाथ मिलाओ और इसे रगड़ो, शाबाश, जरा जोर से रगड़ो, शाबाश। क्या इसमें कोई गर्मी पैदा हुई? जी सर, बहुत। बस इसी तरह रगड़ते रगड़ते गर्मी मोहब्बत पैदा हो जाती है। यहां काम जरूरी है, पूछते फिरना, बस किताबें पढ़ते रहना जरूरी नहीं है। लोग पूछते बहुत है, बल्कि सिर्फ पूछते ही रहते हैं। वैसे सर, मुंह जुबानी अल्लाह अल्लाह करने से कुछ फर्क पड़ता है? कमाल करती हो लड़की, खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भरा है और खुदा का नाम लेने से दिल पर असर ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन है। सर, ये तसव्वुफ है क्या चीज? अपने अखलाक संवारने और बेहतर इंसान बनने का नाम तसव्वुफ है। विर्द वजीफा इसका सहारा है। कुछ लोग समझते हैं कि जिक्र करने से सारे मामला तय हो जाते हैं। उन बेचारों को कोई समझाता ही नहीं कि मामलात और अखलाक की दुरुस्तगी के बगैर वजीफे काट नहीं करते। बस इसी नासमझी की वजह से वो महरूम रहते हैं। रूहानी तरक्की करने का आसान तरीका क्या है सर? आसान सा तरीका तो ये है कि अपने बुजुर्गों के साथ लगे लिपटे रहो, चाहे वो खुद जिस तरह के भी हो। मैं बुजुर्गाने दीन की बात कर रहा हूं, वो बुजुर्ग बुड्ढे बाबू की बात नहीं कर रहा। बुजुर्ग कुछ तरक्की करवा सकते हैं, लेकिन ये बुजुर्गाने दीन। कमाल करते हो रिजवान मियां, ये कैसे हो सकता है कि इंजन तो फैसलाबाद पहुंच जाए और बोगियां जो है वो वहीं रह जाए? सर, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। नहीं सर, पहले मेरी बात का जवाब दें। नहीं भाई नहीं, अब कुलसुम की बारी है। हाँ सर, आप ये बताएं कि सूद क्यों हराम है, जुए की मनाही क्यों है, और बैक बाइटिंग की इजाजत किस लिए नहीं? बस ये हुक्म है कुलसुम बीबी, और हुक्म के लिए कोई दलील नहीं होती।
لیکن ہم تو کسی بات کی دلیل مانے بغیر یا اس کی لاجک سمجھے بغیر اسے تسلیم نہیں کریں گے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھو کسی کمرے میں تمہارے جیسے علوم جدیدہ کے ماہر اور اس شہر کے بڑے بڑے دانشور جمع ہوں اور بڑی باریک فلسفوں میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایک انجینئر ہانپتے کانپتے آئے اور کہے اٹھو بھاگو بھاگو یہ بلڈنگ گر جاتی ہے، تو سب اٹھ کر بھاگ جاؤ گے اور تم میں سے کوئی بھی دلیل یا ریزن نہیں مانگے گا. لیکن سر یہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی ڈاکٹر دوا تجویز کر دے تو بلا ہیلو حجت اسے استعمال کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ اس علم کا ماہر ہے، اس کے تقاضوں کو جانتا ہے. اور کوئی دین کا عالم کوئی بات بتائے تو 100 مسئلے نکالیں گے، 100 باریکیاں نکالیں گے، مسلسل اعتراض کرتے چلے جائیں گے. مولویوں کی بات کیسے مان لے سر؟ ان کے تو آپس کے اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے. اب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. اتنی دیر میں یہی تو بات کر رہا تھا اور ہم پھر وہیں پہنچ گئے. دیکھو بیوی، اختلاف کہاں نہیں ہے اور کس میں نہیں ہے. وکیل حضرات کو دیکھو، وہ ایک ہی واقعے میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خوب جھگڑتے ہیں، خوب جھگڑتے ہیں، اور ان کے جھگڑنے کے لیے تو کٹہرے بنائے جاتے ہیں، اسپیشل قسم کا فرنیچر بنایا جاتا ہے کچہریوں میں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں. وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کس کا علاج کرے اور کس کا نہ کرے، اور ان کے اختلافات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا سر. لیکن سر اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جھگڑا اور اختلاف ہمیں اختلاف نہیں لگتا اور ان کا لگتا ہے جو بڑی شدت کے ساتھ؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے اپنا کلثوم. وجہ اس کی یہ ہے کلثوم بیوی کہ جو بات کسی کو کہنی ہوتی ہے اور اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس کے خلاف اور ناخلاف کی پرواہ نہیں کی جاتی. دین کی چونکہ پرواہ نہیں اور اس کی قدر نہیں، اسی لیے ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو سر کہ جان اور مال چونکہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور لوگ ان کے. شاباش، کلثوم تو بڑی سوچنے والی لڑکی ہے. بات یہ ہے کلثوم کہ جس قدر مال اور جان عزیز ہوتے ہیں، اگر ایمان بھی ایسا ہی عزیز ہو تو علاج کی فکر کی جائے. پہلو بچانے کے لیے پھر کسی قسم کا بہانہ تلاش نہ کیا جائے. ایک سیکنڈ
सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे शायद। मैं बड़े गौर से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मोमिना। वो सर आप कुछ देर के लिए कैमरे की सफाई बंद नहीं कर सकते? कर सकता हूँ बंद। सॉरी सर, जब कोई शख्स काम कर रहा होता है ना तो मुझे लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। ये लीजिए, फरमाइए। पता नहीं मैं बात कहाँ से शुरू करूं। सर ये बात को शुरू करना इतना मुश्किल क्यों होता है? बात को खत्म करना भी इतना ही मुश्किल होता है मोमिना। वो जी आपकी फैक्ट्री में ही है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में। बहुत अच्छा है जी। मैं मिला हूं उससे? क्या पता मिले हो सर, शायद आपकी अम्मी ने भर्ती किया। मुझसे शादी करना चाहता है जी। आमिर जैसा है? नहीं सर, आमिर से अच्छा है, अमीर है जी। ये बड़ी कोठी है 4 कनाल की डिफेंस में। तो फिर फौरन कर लो, सोचो मत। लेकिन जी वो अम्मी चाहती है ना कि मैं अदील के पास चली जाऊं जद्दा। वो लड़की भी अदील को छोड़कर चली गई है। आप बताएं ना सर, मैं क्या करूं? तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो क्या गवाही देता है? मेरा दिल सर? हाँ, वो भी कुछ चाहता होगा, तुम भी कुछ करना चाहती होगी। छोड़ें जी मेरे दिल की बातें। दिल की बातें सुनो तो पता नहीं क्या बने मेरा। भाई तुम्हारी अपनी भी कोई आरजू होगी। है जी, बहुत बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन पूरी नहीं हो सकती ना। क्यों? सर मेरी ख्वाहिश ही ऐसी है, पूरी ना होने वाली। सर तो फिर मैं उससे शादी करा लूं, मुझ वाले क्वालिटी कंट्रोलर से। ब्राउन मूंछों वाला? हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है मोमिना। जी जी, ब्राउन मुझे और ग्रे रंग की आंखें सर। हाँ ग्रे, अच्छा है, बहुत अच्छा, कर लो। थैंक यू सर। अब मैं अम्मी को बताऊंगी ना तो वो माइंड नहीं करेंगी कि सर ने इजाजत दे दी। मुझे एक बात थी, मैं उससे शादी तो कर लूंगी, लेकिन सर एक मुश्किल है। इरशाद? वो सर बात दरअसल ये है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा अच्छा नहीं है। अच्छा, वैसा अच्छा अदील था? हाँ जी, वो लगता था, लेकिन फिर वो लड़की मुझसे जेलस हो गई ना तो सब कुछ उलट पुलट हो गया सर। तो तुम ऐसा करो, तुम सीधा जद्दे चली जाओ, क्योंकि अब वो लड़की भी वहां नहीं है और तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश भी यही है। हाँ जी, ये बेहतर फैसला है। कम से कम इस तरह अम्मी खुश हो जाएंगी और क्या पता जी उनकी दुआएं लग जाए मुझे। अच्छा सर, खुदा हाफिज। ये ठीक है जी, अदील ही बेहतर है। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर। आइए आइए, आ जाइए। अब फिर मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं बात कैसे शुरू करूं। जहां से आपका जी चाहता है वहां से शुरू कर दीजिए। वो सर, आपकी फैक्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में
ऐसा कोई शख्स नहीं जो मुझसे शादी कराना चाहता। वो ब्राउन मूछों वाला और ग्रे आंखों? वो सर, मैं तो कभी आपके क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में गई ही नहीं जी। तुम्हारा मतलब क्या है मोमिना? सर, मैं अम्मी को नहीं समझा सकती ना कि मैं शादी नहीं कराना चाहती। सर, अगर मैं ऊंचे वाले क्वालिटी कंट्रोल का ढोंग नहीं खड़ा करूंगी तो अम्मी मुझे जद्दा भिजवा देंगी ना दिल के पास जबरदस्ती। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। आज से 1.5 साल पहले की और बात थी सर, बिल्कुल और बात। मैं खुशी से चली जाती, लेकिन अब मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, किसी के साथ नहीं। और मेरी ख्वाहिश बड़ी पक्की सहेलियां सर। अम्मी हमें यूं ही पड़ा रहने देना, साथ साथ। हम दोनों किसी को क्या तकलीफ देती हैं जी।